internal war with the Congress party will surface on the streets. Prime Minister Modi says factions within the Congress will blame each other for the defeat. So he's saying the Congress party already expecting defeat in this Lok Sabha elections, and there will be this internal rift, internal war within Congress factions that will pour out on the streets as well. So we are witnessing one of those examples there in Northeast Delhi, where Kanhaiya Kumar was campaigning. So that's the big news coming in. Arvinder Singh Lovely, remember, who's been a senior leader of Delhi Congress, a close aide of former Chief Minister Sheila Dikshit when Aam Aadmi Party had emerged, making a sharpening attack against then Congress ministers and other leaders as well. He's now said that this alliance is unacceptable to us. अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। So I want to immediately bring in India Today's Anmol Bal. He's joining me live from the national capital. Anmol, this is going to become a problem, and Kumar Kunal also continues to be with us. So Kunal, I'll come to you first, because at this point you have covered Delhi politics long enough, ever since there was Chief Minister Sheila Dikshit and then Aam Aadmi Party had emerged. Right now BJP is charging at these parties right away. And Kunal, you tell me, BJP of course and Prime Minister Modi is hitting at the Congress party, but do you see an impact of this internal rift on the ground? How are you looking at the situation? What's happening? Just almost a month ahead of the Delhi elections, when Delhi is going to poll. And now this kind of rift has come out in open in Congress. And even Arvinder Singh Lovely, who was present, DPCC president, he also raised questions about the AAP alliance with Congress. So all these things are playing out, and obviously Prime Minister Narendra Modi is watching all these drama unfolding in the opposition camp, and he has some opportunity to blast out the opposition and through the political equations which are coming out in open between AAP and Congress. Prime Minister has an opportunity from Karnataka, and he blasted out opposition that the rift will come out in open, and the moment the results will be out, the blame game will start obviously within the alliance partners. So all these things are happening. First of all, we have to look that it was quite surprising when Arvinder Singh Lovely decided to resign from the from the post of President Delhi Pradesh Congress today morning. And now his resignation has been accepted. He also did a press conference a while ago, and he told that he is not going to join any other party. But he joined a party, BJP, earlier. Remember, Kunal, he joined it for some weeks, he shifted, but can that happen again? So we'll listen into what Prime Minister Modi said. And of course, everyone's watching this unfold. What did Prime Minister Modi say in Karnataka about this internal faction war? Listen in. अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। So here's the big story of the day. Delhi's Congress chief Arvinder Singh Lovely has resigned from his position over 1, the alliance with the Aam Aadmi Party for Lok Sabha elections, and 2, Kanhaiya Kumar, who's been announced as a candidate from Northeast Delhi. Citing reasons, Lovely has said his resignation was not due to ticket distribution but because of party workers who are suffering on the ground. He's gone on to claim that Delhi Congress leaders were against alliance with the Aam Aadmi Party in the national capital, and this alliance simply was a compromise.
Arvinder Singh Lovely has highlighted how the Congress leaders like Kanhaiya Kumar have been praising Arvind Kejriwal but without knowing the ground reality. Sources are telling India Today that Congress Chief Mallikarjun Kharge has instructed KC Venugopal to resolve this crisis at the soonest. Calling Kanhaiya Kumar as an outsider, one faction of Congress supporters protested against party's decision to give him the ticket, while another faction of the Congress party were supporting and backing Kanhaiya, alleging that these other workers, protesting workers, have been sent by the Bharatiya Janata Party. BJP, of course, is watching all this unfold and have targeted the Grand Old Party, saying Congress workers were rejecting the high command culture. मूल तौर पर जो उसमें कारण सामने आया कि उन्होंने चिट्ठी में लिखकर कहा कि मेरे को आम आदमी पार्टी की प्रशंसा करने को कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को प्रशंसा करने को कहा जा रहा है, जबकि वो बेईमान पार्टी है और उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। अरविंदर सिंह लवली भी जानते हैं कि जब 7 सीटों पर फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव हारेंगे और 2-3 सीटों पर जमानत भी जब्त हो जाएगी, तो अरविंदर सिंह लवली जी को वैसे भी पद से हटा ही दिया जाएगा। इसलिए उनको पता है कि ये जो ठीकरा मेरे ऊपर हार का पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इकट्ठे होने के बावजूद भी कुछ नहीं बन पा रहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है इस दबाव में अरविंदर सिंह लवली जी ने इस्तीफा दे दिया। सर, आज अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया, सियासी घमासान चिढ़ गया है और सीधा अपने लेटर में उन्होंने आप पर आरोप लगाया। हाँ, उन्होंने जो आरोप लगाए वो आरोप का मैं स्वीकार करता हूं कि वो जो प्रकार के लोगों का चयन करके कई जगह पे लगाना चाहते थे, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मीडिया डिबेट। लवली जी वो खुद भी जानते हैं, मगर जब उन्होंने मुझे पर, तो मैं कहता हूं कि मेरा काम ही वही है कि मुझको जो लगता है, मेरी बड़ी ईमानदारी से मेरा कॉन्शियस कहता है कि ये सही डिसीजन नहीं, तो रोकना मेरा फर्ज बन जाता है, तो मैं अदा करता हूं। और अन्यथा मेरी सोच के बारे में एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू से, मैं भी कहूंगा कबीरा जग में मुझसे बुरा न कोई। टिकट वितरण हो सर, और भी जो अन्य फैसले हो उनको लेकर, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन बनाना हो, उसको लेकर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। मैं समझ रहा हूँ सब अप्रस्तुत हैं, ये स्टेज से बहुत पहले आगे निकल चुके हैं। आज की डेट में वो जो प्रश्न खड़े करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां होंगी, करते होंगे। कहीं ना कहीं आपने बातचीत करते हुए भी कहा उन पर कोई प्रेशर भी हो सकता है। मैं अभी नहीं बता सकता, मगर मेरी धारणा है कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। दिल्ली कांग्रेस में लगातार बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आसिफ मोहम्मद खान जो कि कांग्रेस के नेता है, वो लवली के घर पहुंचे थे। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान के साथ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के जो वर्कर्स है अरविंदर सिंह लवली के समर्थक में आए थे, वो लगातार आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आसिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया है कि उनको लोभन जो है वो दिया जा रहा था अरविंदर सिंह लवली का समर्थन देने के लिए। सुभाष चोपड़ा इस पूरे मामले की जो है वो लगातार डील कर रहे थे, रामवीर सिंह बिदूड़ी, और हो सकता है कि अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ ले और पूर्वी दिल्ली से जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनका टिकट जो है वो कट जाए। आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पर हमारे साथ है, हम कोशिश करेंगे लगातार। ये देखिए धक्का मुक्की किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की जो है हो रही है आसिफ मोहम्मद खान को लेकर के, जबरदस्त नारेबाजी। यहाँ पर आप देखिए कि अरविंदर सिंह लवली के समर्थक आसिफ मोहम्मद खान को यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आवाज पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है वो प्री प्लान के तौर पर जो है वो दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये सारा खेल सुभाष चोपड़ा का है, वो बीजेपी से साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रहे थे और हम भी दूरी के फार्म हाउस पर ये पिछले 1 महीने से मीटिंगें चल रही। आपने देखा रवैया, आपको बावरिया जी से शिकायत हो सकती है, आप उस शिकायत को हाई कमांड जाइए और आप चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये, और आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए ये सारा खेला किया गया है। हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की, तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है। और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें, तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। देखिए, कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और उनकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि वही उसके बारे में बोलें तो वो ज्यादा बेहतर है। और वो व्यक्ति
जो भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरा भारत सुदृढ़ हो, सशक्त हो और एक ऐसे नेतृत्व के साथ काम करना चाहता है जिसमें भारत एक आगे बढ़ता हुआ भारत सबको दिखे, तो ऐसे भारत में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का हम तो स्वागत करेंगे। So amid all of this, what specifically did Arvinder Singh Lovely say as the first reaction? And he held a press conference a short while ago. This was his reasoning that he left the party. Listen in. मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। So he's not joining any party as of now, is what he says. Now listen in to that interview where Kanhaiya Kumar had praised Arvind Kejriwal, and one of the reasons that Arvinder Singh Lovely says is absolutely unacceptable to it. This interview was given to India Today when he spoke to Mausami Singh and Rahul Gautam. Here's what Kanhaiya Kumar said. पहले बार बार बीजेपी कहती थी कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज ये बात बोलना बंद कर दिए और टू द एक्सटेंड वहां तक चले गए। कहते हैं ना कि आपसे दुश्मनी में इस कदर दीवाने हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ गए। एन केन प्रकारेण जो है अध्यादेश ले आया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं होगा, पुलिस पहले से दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, तो उसके अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं। फिर ये चर्चा करना शुरू कर दिए कि दिल्ली में तो अब विधानसभा ही नहीं रहेगी, विधानसभा ही भंग कर देंगे, सिर्फ मेयर रहेगा। तो दिल्ली तो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है और दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोगों से इसीलिए बीजेपी बदला लेना चाहती है, उनको तंग करना चाहती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, सड़क की व्यवस्था करने वाला, स्कूल खोलने वाला, जो जनता यहाँ के साधारण हैं दिल्ली के, उनके अपेक्षाओं को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो वो मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाले हैं, वो एक्चुअली दिल्ली की जनता को अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ ये बदलापूर्वक कार्रवाई करेंगे। और इस बात पे कांग्रेस और आप, उसके वर्कर, उसके नेता दोनों में सहमति है कि यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है।